Yesterday, we studied about the two sector economy. And in the two sector economy, we also introduced the money market and we studied that is whenever the money market is introduced in that one, the firms are considered as net. कैमरा ऑफ कर दो आर्यन, कैमरा आप ऑफ कर दो और नोट्स आई थिंक आपको विजिबल होंगे स्क्रीन पे। तो जो नोट्स सामने लिखे हैं मैं उसी को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, है ना। हाँ, अगर कोई डाउट आता है कि कोई क्वेरी आपको अराइज होती है तो आप बीच में कभी भी बोल सकते हैं, बीच में पूछ सकते हैं एट एनी मोमेंट। फाइन। In the two sector economy, when we introduced money market, we studied that is firms are considered to be the net borrowers. Firms or the producers borrow for the investment purposes, while the household, the consumer, are considered as net lenders or net savers, as mainly they save for their future. And now we are adding government also to that. In two sector economy there were two sectors, that is one was firm, another one was household. Now in the three sector economy what we are going to do, we will add one more, that is we will add the government also. As we all know, that is government acts as the producer as well as consumer both. There are certain public sector enterprises. On behalf of that, the government acts as a producer. Government supplies goods and services to the citizens, to the country, to the economy. While there are certain departments like defense and railways, in which there are certain things which are consumed by the government officials for their final use. That is, for the defense personnels, the arms and ammunitions are purchased, and the food articles are purchased for the defense personnels and other things. So government acts as a consumer as well as producer both. Now we have to introduce that government in the two sector economy, then it will become a three sector economy. Just study, and yesterday only I told you the same explanation, the same wordings, the same paragraphs we have to use. Just एक एक पैराग्राफ हम और एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे। कल हमने दो टू सेक्टर इकोनॉमी था, दो पैराग्राफ हमने पढ़े थे। आज वही दो पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ उसमें थ्री सेक्टर इकोनॉमी के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक एडिशनल ऐड हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट। देयर आर टू सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, नेमली फर्म एंड हाउसहोल्ड. Household supply factor of production. I hope you can recall the factor of production includes land, labor, capital, and entrepreneur. So household supply factor of production to firms, and in return household receive factor payments. Firms produces goods and services which is being consumed by the household. The same paragraph that we discussed yesterday. ठीक है। हाउसहोल्ड का क्या काम है? हाउसहोल्ड के दो काम है। सबसे पहला, फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करना, और दूसरा, फर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया था उन्हें कंज्यूम करना। फर्दर, household save some money in capital market and also borrows, but their savings are more than borrowings. मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, हाउसहोल्ड सेव भी करते हैं, बोरो भी करते हैं, बट मेनली हाउसहोल्ड्स कॉन्सेंट्रेट ओवर सेविंग्स मोर। बोरो करने के लिए इतना नहीं होता है। सो हाउसहोल्ड्स मेनली कॉन्सेंट्रेट ओवर देयर सेविंग्स, so therefore they are known as net lenders. You may use the word net lenders, you may use the word net savers. ठीक है, आगे देखिए। Firms also borrows and save in capital market. Both, sorry, but their borrowings are more than savings. Therefore, they are known as net borrowers. So कल भी हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट, that is firms are mainly known as net borrowers, and
the household are mainly known as net lenders. Let us move further. Now, the third paragraph is related to government. Tanvi, you want to ask something? तन्वी, अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली बोल के पूछ लीजिए. नो सर, बाय मिस्टेक हो गया. ओके फाइन, नो इश्यूज, नो इश्यूज. चलिए थर्ड पैराग्राफ पे हम बढ़ते हैं. गवर्नमेंट कलेक्ट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फर्म. वी ऑल नो दैट इज गवर्नमेंट कलेक्ट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द फर्म्स. डायरेक्ट टैक्सेस में आता है आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है जीएसटी एटसेट्रा. So government collects direct and indirect taxes from firms as well as from households. It provides transfer payments. Government का first sentence क्या आया है? That government collects taxes, both kinds of taxes, direct taxes as well as indirect taxes from the firms as well as from the household. ठीक है? This is a source of revenue for the firm. Okay. Now, the second sentence states that it provides transfer payments to the household and firms in the form of allowances and subsidies. Allowances and subsidies, these two terms are the examples of transfer payments. Whenever a transfer payment is given to the household, it is known as, or it may be in the form of allowance. While whenever any transfer payment will be given to the firms, it will be in the form of सब्सिडीज. फॉर एग्जाम्पल, एलपीजी गैस सिलेंडर पे सब्सिडीज मिलती हैं. मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर में. और एक टर्म मैंने आपको बताया था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस किसे मिलता है? द हाउसहोल्ड, टू द हाउसहोल्ड, द अनएम्प्लॉयड हाउसहोल्ड्स. सो इट provides transfer payments to household and firms in the form of allowances and subsidies. Government takes, now this is the third sentence for the government takes goods and services from the firms and gives them payment. अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस था जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की है, ये क्या है? ये वन साइडेड ट्रांसफर है. कौन कैसे पे कर रहा है? द फर्म एंड हाउस होल्ड आर पेइंग टू द गवर्नमेंट, और उसके रिटर्न में गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है. ठीक है. उसी के साथ में जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, ये भी यूनिलेटरल पेमेंट है, वन साइडेड ट्रांसफर है. गवर्नमेंट ने फर्म्स को और हाउस होल्ड्स को, दोनों को ट्रांसफर पेमेंट्स दिए, और उसके रिटर्न में फर्म्स ने, हाउस होल्ड ने कुछ नहीं दिया. अब जो थर्ड सेंटेंस आ रहा है, दिस इज रिलेटेड टू द फैक्टर पेमेंट्स. गवर्नमेंट टेक्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स एंड गिव्स देम पेमेंट. कौन सा पेमेंट है ये फैक्टर पेमेंट हो गया. गवर्नमेंट मेक फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड्स वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज. कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल रेलवे डिपार्टमेंट है, उसमें अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी, और वो क्या है? वो फैक्टर इनकम है उस हाउस होल्ड का. इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, रेवेन्यू का कौन सा सोर्स है? टैक्सेस इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. एक्सपेंडिचर का कौन सा सोर्स है? बहुत सारे एक्सपेंडिचर के सोर्स हैं यहाँ पे. एक तो आपके ट्रांसफर पेमेंट, ये भी एक्सपेंडिचर में आता है. दूसरा आपका फैक्टर पेमेंट्स, वो भी एक्सपेंडिचर में आता है. फैक्टर पेमेंट में भी हमने दो तरह के देखे. जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की थी, उसके लिए जो पेमेंट किया, वो भी फैक्टर पेमेंट है. और जो हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, उनको जो सैलरी दिया, वो भी फैक्टर पेमेंट है. तो एक्सपेंडिचर के यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हो गए. रेवेन्यू का 1 एग्जाम्पल है. रेवेन्यू के लिए यहाँ पे टैक्सेस 1 एग्जाम्पल लिखा है, और एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है? ट्रांसफर पेमेंट. दूसरा है फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउसहोल्ड, एंड तीसरा है फैक्टर पेमेंट टू द फर्म्स. सो इफ एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, इट रिजल्ट इन बजट डेफिसिट. आई होप बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा सेंटेंस. इफ एक्सपेंडिचर विल बी मोर देन रेवेन्यू, इट विल रिजल्ट इन बजट डेफिसिट. देयरफॉर इट विल बोरो मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं. ऑब्वियस बात है कि अगर गवर्नमेंट के पास में बजट डेफिसिट होगा ना, अगर गवर्नमेंट के पास में बजट डेफिसिट होगा, देन द गवर्नमेंट हैव टू बोरो फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. ओके. ऑन द अदर साइड, if revenue is more than the expenditure,
then it results in budget surplus. If revenue will be more than the expenditure, it will result in budget surplus. Therefore, it will save in the capital market. यानी कि गवर्नमेंट भी कैपिटल मार्केट से बोरो भी कर सकती है और सेव भी कर सकती है. बोरो कब करेगी? When there will be a budget deficit. Save कब करेगी? When there will be a budget surplus. In which situation there will be a budget deficit? Where the expenditure will be more than the revenue, it will result in budget deficit. When it will be a budget surplus, where the revenue will be more than the expenditure, then it will result in budget surplus. Now the question is, what are the sources of revenue for the government? Direct and indirect taxes are the sources of revenue for the government. What are the sources of expenditure for the government? Transfer payment is one of the source. Then factory payment to the household and factory payment to the firms. These are the source of expenditure for the government. Any questions in this explanation? Anybody would like to ask any question, any query, any doubt? No, Everyone sir. is clear? Okay, fine. So we can just continue with the diagram also. Okay, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया है उसी को हम अब डायग्राम से भी समझेंगे. कल भी हमने डायग्राम लिया था और आज भी हम डायग्राम से समझेंगे. ठीक है. तो देखिए आपकी स्क्रीन पे इस समय जो डायग्राम विजिबल हो रहा है, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स 3 sector economy. The diagram that you can see over your screen, this represents 3 sector economy. Okay, just hold on. Okay, 3 sector circular flow model reflecting activities of government along with producers and household. Only money flow have been shown in this diagram. Now आपको याद होगा हम रियल फ्लो भी लेते हैं और मनी फ्लो भी लेते हैं, लेकिन इस डायग्राम में जो डायग्राम आपके सामने है यहाँ पे हमने सिर्फ मनी फ्लो को लिया है. बिकॉज ओनली मनी फ्लो लेने पे भी आप देख सकते हैं काफी सारे एरोज बने हैं, काफी अच्छा बड़ा फ्लो चार्ट ये है. अगर इसमें हमने रियल फ्लो को भी इंट्रोड्यूस किया होता तो काफी कॉम्प्लिकेटेड और जम्बल्ड हो जाता. सो इस डायग्राम में, इस फ्लो चार्ट में हम 3 सेक्टर इकोनॉमी ले रहे हैं. यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूसर दैट इज फर्म्स भी हैं, हाउसहोल्ड्स दैट इज कंज्यूमर भी हैं, मनी मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट टू बी वो भी है, और थर्ड हमने इसमें गवर्नमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कि प्रोड्यूसर और हाउसहोल्ड के बीच में क्या रिलेशन है. तो एक तरफ तो आप देख सकते हैं दैट इज द बॉटम मोस्ट एरो. हाउसहोल्ड से प्रोड्यूसर के पास एरो गया है किस फॉर्म में? हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में. और उसी के ऊपर प्रोड्यूसर से हाउसहोल्ड के पास में एक एरो आया है किस फॉर्म में? फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में. ठीक है. हाउसहोल्ड प्रोड्यूसर को क्या देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और फर्म्स हाउसहोल्ड को क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट. फैक्टर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. इसके बाद में हाउस होल्ड को हमने क्या सपोज किया था? वैसे तो हाउस होल्ड सेव भी करते हैं और बोरो भी करते हैं, इसलिए दोनों तरफ एरो बने हैं. लेकिन फिर भी हमने क्या माना था? दैट इज हाउस होल्ड आर नेट सेवर्स एंड द फर्म्स आर नेट बोरोवर्स. आप चाहें तो दोनों एरो लगा सकते हैं, आप चाहे तो एक सिंगल एरो लगा सकते हैं. अगर सिंगल एरो लगाते हैं तो आप नेट लेंडर्स एंड नेट बोरोवर्स लिखेंगे. ठीक है. हु विल बी द नेट बोरोवर्स? प्रोड्यूसर्स विल बी द नेट बोरोवर्स. Who will be the net lenders? Household will be the net lenders. Household will give money in the money market and the producer will borrow from that money market. अब बात करते हैं गवर्नमेंट की. तो देखिए गवर्नमेंट से हाउसहोल्ड के पास में क्या आया और हाउसहोल्ड से गवर्नमेंट के पास में क्या गया. टोटल 2 ही एरो हैं. ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन यू कैन सी गवर्नमेंट से हाउसहोल्ड के पास में ट्रांसफर पेमेंट्स आए हैं. और ट्रांसफर पेमेंट के एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? मैंने आपको बताया था ओल्ड एज पेंशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द हाउसहोल्ड. और हाउसहोल्ड ने गवर्नमेंट को क्या दिया? हाउसहोल्ड हैज गिवन टू द गवर्नमेंट द टैक्सेस, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस बोथ. अब आ जाइए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन यू कैन सी प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट को क्या दिया?
प्रोड्यूसर हैज गिवन टू द गवर्नमेंट टैक्सेस, और गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को या फिर फर्म्स को क्या क्या दिया, दो चीजें दी है गवर्नमेंट ने. पहला एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सेकेंडली द सब्सिडीज. So this is the and last thing, that is government also saves in the money market, and government also borrows from the money market. When there will be a budget deficit, the government will borrow. When there will be a budget surplus, the government will save. So this is the explanation through the flow chart on your screen. जो हमने explanation में पढ़ा था उसी को यहाँ पे हमने diagrammatic form में represent किया है. कल भी मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आप क्या प्रेजेंट करेंगे, आप assumptions लिखेंगे, आप explanation देंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के बाद लास्टली आप ऑब्जर्वेशन भी लिखेंगे. ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम 4 सेक्टर इकोनॉमी पे मूव ऑन कर रहे हैं. पहले मैं एक्सप्लेनेशन को रीड करूंगा और उसके बाद हम डायग्राम को देखेंगे, है ना. डायग्राम ऊपर मैंने स्क्रॉल कर दिया, डायग्राम को हम बाद में देखेंगे, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा है. 4 सेक्टर इकोनॉमी, तो अब फर्म भी है, हाउस होल्ड भी है, गवर्नमेंट भी है, और हम फोर्थ किसको ऐड कर देंगे इसमें, फोर्थ इसमें आ जाएगा, दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, विच मे बी कॉल्ड एज अ फॉरेन ट्रेड. स्टार्ट करते हैं. There are 4 sectors in an economy, namely firm, household, government, and external, that is rest of the world sector. Household supply factor of production to the firm, and in return household receive factor of payments or factor payments simply. Firms produces goods and services which is being consumed by household. Household saves some money and also borrows from money market. सेम वही एक्सप्लेनेशन है जो हमने कल भी पढ़ा था, अभी 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी पढ़ा था, सेम एज इट इज वर्ड टू वर्ड वही है. ओके, बट देयर सेविंग्स आर मोर देन देयर बोरोइंग्स, दैट इज हाउसहोल्ड्स की सेविंग्स बोरोइंग से ज्यादा होती है, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज नेट लेंडर्स. फर्म्स ऑल्सो बोरोज Firms also borrows and save in the money market, but their borrowings are more than their savings, and therefore they are termed as net borrowers. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है गवर्नमेंट के लिए. गवर्नमेंट कलेक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फर्म्स एंड हाउसहोल्ड्स. It provides transfer payment to household and firms in the form of allowances and subsidies. As it is same explanation है. ट्रांसफर पेमेंट हाउस होल्ड को दी जाती है किस फॉर्म में, अलाउंस के फॉर्म में. फर्म्स को दिए जाते हैं ट्रांसफर पेमेंट किस फॉर्म में, सब्सिडीज के फॉर्म में. गवर्नमेंट टेक्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म एंड गिव्स देम फैक्टर पेमेंट्स. गवर्नमेंट टेक गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म एंड गिव्स देम फैक्टर पेमेंट्स. गवर्नमेंट मेक फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड ऑल्सो वर्किंग इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज. इफ expenditure is more than revenue, it results in budget deficit, and therefore it will borrow money from the money market. If revenue are more than expenditure, it will result in budget surplus, therefore it will save in the money market. जगह जगह पे मैंने कैपिटल को कट करके मनी कर रखा है, बिकॉज जो भी हमारे फ्लो चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, उन सब में मनी मार्केट या फिर फाइनेंशियल मार्केट का ही यूज किया था. Now, last paragraph. This is the third paragraph related to the rest of the world, or that is foreign trade. No economy is a closed economy. ऊपर वाले दोनों पैराग्राफ हम ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेनेशन ले चुके थे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. No economy is a closed economy. Government directly or indirectly import and export from other countries. Obviously, government करती है. लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो कई बार आर्म्स एंड एम्यूनिशंस इंडिया को परचेज करने पड़ते हैं अदर कंट्रीज से. ठीक है, एंड इवन एयरक्राफ्ट्स परचेज करने पड़ते हैं. अभी एक बहुत पॉपुलर केस रहा था, राहुल गांधी जी का नाम जोड़ा रहा था, रशिया से राफेल परचेज किए गए थे, उस बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था ये. ठीक है, सो क्या है, इट इज एन इम्पोर्ट ऑफ
jets, fighter jets. Okay, so government directly or indirectly import and export from other countries. Similarly, some firms also directly or indirectly import and export from other countries. भाई गवर्नमेंट तो कर ही रही है, उसी के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्ट भी करती हैं, एक्सपोर्ट भी करती हैं. चाइना से तो बहुत गुड्स आता है हमारे कंट्री में, अभी भी आ रहा है. इतना हम लोगों ने कैंपेन कर दिया चाइना के अगेंस्ट में, फिर भी चाइना से खूब गुड्स आ रहा है. ठीक है, और एक्सपोर्ट भी करते हैं. ऑब्वियसली हमारे कंट्री से बहुत सारा गुड्स एक्सपोर्ट भी होता है बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड बाय द प्राइवेट फर्म्स ऑल्सो. ओके, other countries for which similarly some firms also directly or indirectly import and export from other countries for which they have to make payment for import and export. ऑब्वियसली अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो मनी रिसीव होगा, और अगर इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट करना है. Following aggregates can be obtained from external sector. अब एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें या एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें, तो एक्सटर्नल ट्रेड से या एक्सटर्नल सेक्टर से हमें क्या क्या एग्रीगेट्स या क्या क्या वेरिएबल्स अचीव हो सकते हैं. सो पहला वेरिएबल मिल सकता है हमें नेट ट्रांसफर पेमेंट, और दूसरा वेरिएबल हमें मिल सकता है नेट फैक्टर पेमेंट, ऑब्वियसली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसी टर्म को हमने नेशनल इनकम के चैप्टर में भी पढ़ा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. उसी को हम यहाँ पे नेट फैक्टर पेमेंट और नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड या फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी कह सकते हैं. कैसे होता है नेट ट्रांसफर पेमेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला फॉर्म में लिखा है ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव्ड माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स मेड. आई रिपीट, ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव्ड माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स मेड इक्वल्स टू नेट ट्रांसफर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Secondly, factor payments received minus factor payments made equals to net factor payment received from rest of the world. और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. अगर पेमेंट्स ज्यादा हैं देन इट विल रिजल्ट इन नेट फैक्टर पेमेंट मेड, और अगर रिसीट्स ज्यादा हैं देन इट विल रिजल्ट इन नेट फैक्टर पेमेंट रिसीव्ड. ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को ट्रांसफर और फैक्टर इन दोनों में डिफरेंस याद होगा जब हमने पहले पढ़ा था. ट्रांसफर पेमेंट्स वो हैं जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, जिनके रिटर्न में हम कुछ भी रिसीव नहीं करते हैं, सिर्फ एक साइड ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. ठीक है, जिसका एग्जांपल था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज एटसेट्रा. वाइल फैक्टर पेमेंट्स वो हैं जिसके रिटर्न में फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको जो सैलरी मिलेगी दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ फैक्टर पेमेंट. ठीक है, सो फैक्टर पेमेंट बायलैटरल होता है और ट्रांसफर पेमेंट यूनिलैटरल होता है, वन साइडेड होता है. लास्टली आज के लिए हम इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं. फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो मॉडल रिफ्लेक्टिंग एक्टिविटीज ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलोंग विद प्रोड्यूसर, हाउसहोल्ड एंड द गवर्नमेंट. तो देखिए, सबसे पहले प्रोड्यूसर और हाउसहोल्ड के बीच का अगर रिलेशन देखना है तो वही सेम रिलेशन रहेगा. हाउसहोल्ड प्रोड्यूसर को क्या देगा और प्रोड्यूसर हाउसहोल्ड से क्या लेगा. सो सीधी बात है, हाउसहोल्ड विल प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ मनी मार्केट हम बात कर रहे हैं. द हाउसहोल्ड विल प्रोवाइड टू द फर्म्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हाउसहोल्ड से फर्म के पास में क्या आएगा, हाउसहोल्ड से फर्म के पास में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा. ठीक है, उसी के बाद साथ में प्रोड्यूसर हाउसहोल्ड को क्या देगा, प्रोड्यूसर हाउसहोल्ड को फैक्टर पेमेंट्स देगा, that is rent, interest, wages and profit. Producer will provide factor payments to the household. I think ये दोनों एरो जो मैंने अभी अभी बोले हैं ये मुझे इस डायग्राम में बने हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. न तो मुझे यहाँ से प्रोड्यूसर के से हाउसहोल्ड के पास कोई एरो जाता हुआ दिख रहा है और न ही हाउसहोल्ड से प्रोड्यूसर के पास कोई एरो आया है. ओके, जो भी एरोज हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से लिंक किए हुए हैं. कोई बात नहीं, आप ध्यान रखें, आप उसको बना सकते हैं इसमें. After that, producer will provide taxes to the government. Producer will receive transfer payment from the government. Producer will receive government consumption expenditure from the government. Okay. Now, government और household के बीच में क्या relation है? Government will take taxes and provide transfer payment to the household. Government और
मनी मार्केट में क्या रिलेशन है? द गवर्नमेंट विल borrow from the money market in the situation of budget deficit and government will save in the money market in the situation of budget surplus. Lastly हम आ जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे. ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल सेक्टर लिखा हुआ दिख रहा होगा. तो हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को रिलेट किया है किससे? प्रोड्यूसर से और हाउस होल्ड से. सबसे पहले प्रोड्यूसर की तरफ आप देखें. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज एक्सपोर्ट रिसीट्स एंड इंपोर्ट पेमेंट. अगर एक्सपोर्ट होगा तो प्रोड्यूसर को मनी रिसीव होगा, और अगर प्रोड्यूसर इंपोर्ट करेगा तो उसे पेमेंट करना पड़ेगा. इसी तरह से हाउस होल्ड की तरफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या है? नेट ट्रांसफर पेमेंट एंड नेट फैक्टर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट होंगे और फैक्टर पेमेंट होंगे. सो दिस इज द डायग्राम दैट यू हैव टू प्रेजेंट इन योर एग्जामिनेशन in a 4 sector economy. Any questions to anybody? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे हम ओवर करेंगे.